Hello, dear children. Welcome back to my channel. Today I am going to share the question answers of the previous video, the fun they had. In the previous video I have explained about the entire chapter with all the difficult words and the word meaning. So today I am going to share the question answers. So let's do the textual question answers. Answer this question in a few words or a couple of sentences each. Dear children, I would like to say that I have made answers quite simpler so that you could easily learn it. Answer, it is not required that answer should be more than 2 to 3 lines. Then what happens? It becomes quite difficult for us to learn. So let's start. How old are Margie and Tommy? Here the answer I have made. Margie was 11 and Tommy was 13 years old. So I hope the answers are very simple in a one line. You can easily learn it. So the next question, let's see. What did Margie write in her diary? So here, answer. Margie wrote today, 17th May 2157, and Tommy found a real book. Okay, so next. Question 3. Had Margie ever seen a book before? So the answer here you could see, no, Margie had never seen a book before as she wrote about a real book in her diary. Why I have given here? Here I have said that no, Margie had never seen this type of book because I have given evidence also. As she have mentioned in her diary that she wrote, do you remember that first line she wrote that about a real book. That means before this she have not seen any real book. Okay. So let's see question number 4. What things about the book did she find strange? Means here they are asking that what strange things she found in the book. Why it was strange for Margie. So what was strange about? She found the book quite strange as it was yellow and wrinkled pages. There in the book, in the story, I have explained that how it was wrinkled and yellow because why it was yellow in color, because the book was very old. And the main strange thing, the main surprising thing for Margie was that the words stood still instead of moving. Because of this, she was quite surprised that why the words are not moving. So the main answer is she found the book quite strange as it was yellow and wrinkled pages and the words stood still instead of moving. Okay, let's go to the next question. What do you think a tally book is? In the chapter we have found many a place it was mentioned as tally book. So they are asking what do you think by a tally book? So here let's see. A telebook is a book meant for television. It is what moves on television screen having the qualities of book. Okay, means what here they are saying that television means a big screen and where we could see the qualities of book means the entire in the chapter also Tommy and Margie when they were discussing they were discussing about that millions of books can be stored in that television. So this is the answer. The telebook is a book which is mean for the television. It means it seems to be like a television and it is what moves on a television screen. Means once you completed what it is written in the screen, then the next scene will be shown in the television screen. Okay, hope the answers are easier and you could easily understand also because I have chosen very easy answers, very simple answers. So next question, where was Margie's school? Did she have any classmates? So let's see. Margie's school was her own room. Her mechanical teacher was therein to teach her. She did not have any classmate. So, how was her school? Her school was inside her room itself, and mechanical teacher used to teach her. And yeah, here they have asked, did she have any classmate? Classmates means friends. जैसे आप classmates school में जाते हो तो आपके friends होते हैं
So here they asked that did she have any classmate? So naturally, since she was alone in the room, वो अकेली ही पढ़ती थी, she might not have any friends. So here I have mentioned she did not have any classmate. Okay, the next question, seventh question. What subject did Margie and Tommy learn? So what else subject it was mentioned in the chapter that what Margie and Tommy learned. Okay, let's see. Margie learned geography and mathematics, whereas Tommy learned history and mathematics. Okay, so let's move to the next section. Answer the following. Answer the following with reference to the story. These are nothing but the quotes and where we have to answer according to it. I would throw it away. Who says these words? Who said that I would throw it away? Margie. Margie says it. Naturally, she hated school. That's why she told in that way. So next question. What does it refer to? Here, she told that I would throw it away. Can you see it? So here they are asking what does it refer to? So here it refers to the book. She doesn't look. She doesn't love the books and also the school. She hated it. So naturally, she wanted to throw it. Means that book. Next, what it is being compared with the speaker. So what the question is? What is it being compared? It को किसके साथ compare कर रहा है? With by the speaker. किसके साथ compare कर रहा है? So here let's see. It is being compared with the television screen or the telebook. Textbook. So what it means the book. So the speaker means Margie. What she was comparing it with the other thing, and she was comparing that book means it with her telebook, which she used to attend everyday telebook, in which words used to move and she have to read it fast as she have to keep the pace according to the telebook. So here it has been compared with the television or telebook we can say. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. Who does they refer to? So here you could see, sure, they had. Here they are asking who is they. So here we can see the answer. They refer to Tommy's grandfather's grandfather. It is already mentioned in the textbook itself that the book that they got, it was of Tommy's grandfather. Grandfather's grandfather. Okay. So next, what does regular mean here? Here they were saying that they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. So they are asking, what is mean by regular? So let's see. Regular here means who is present daily and is never absent. Naturally, हम regular नहीं बोलते. We should regularly go to the school. Regularly means that every day we should go. So here regularly means who is present daily, जो रोज आता है and is never absent, जो कभी absent नहीं होता है. once in a while एक बार भी चलता है, but अगर alternate days में कोई absent हो रहा है तो it is not regular. That is called to be irregular. ठीक है. So next, what is it contrasted with? It को किसके साथ compare किया गया? So it is contrasted with the television teacher, that is the mechanical teacher. यहाँ पे human teacher के साथ किसको compare किया गया था? Mechanical teacher, जो मार्जी के पास था. ठीक है. Next one. Answer each of these questions in a short paragraph about 30 words. Before this, we were answering in very few lines, few words, but now it should be, as compared to previous question, it should be quite lengthy, but it should not be too lengthy. Okay, let's see. Here I have given two questions in your textbook. You could find only one, but I have given the question in some other way because your teacher might ask the question in some other way too, but the answers remain same. So you should know that which type of question if she could ask that, and then you have to give the same answer. That's why I have prepared two questions. So what kind of teachers did Margie and Tommy have? Margie के कैसे टीचर्स कैसे थे, या फिर इसको in the next type also we can write
डिस्क्राइब द टीचर्स मार्जी एंड टॉमी हैड। तो कौन से टीचर्स, कैसे टीचर्स थे मार्जी के एंड टॉमी के? लेट्स सी। दे हैड अ मैकेनिकल टीचर्स इन द फॉर्म ऑफ टेलीविजन और कंप्यूटर टीचर्स। इट वाज why was it, क्यों उसके ऐसे क्यों थे, ऐसे टीचर्स मैकेनिकल क्यों थे? बिकॉज इट वाज ईयर 2157, okay, means 22nd century. Science had replaced men teachers with the computer teachers. तो अभी जैसे आप लोग देखते हैं आपके जो है ह्यूमन टीचर है, तो 2151 में ह्यूमन टीचर की जगह कौन रिप्लेस करेगा? कंप्यूटर टीचर्स, टेली बुक्स। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did Margie's mother send the county inspector? मार्जी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों कॉल किया? ओके, लेट्स सी। She sent Margie's mechanical teacher for county inspector because it had been giving trouble in its geography sector. It was too quick that Margie couldn't follow it. तो मार्जी की माँ ने क्यों काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा था? बिकॉज जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो काफी गेयर अप हो गया था, बहुत फास्ट हो रहा था, एंड मार्जी कैन नॉट गेट अ पेस विद दैट मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर के साथ वो कोप अप नहीं कर पा रही थी, इसीलिए दैट टेली बुक वाज सेंट टू द काउंटी इंस्पेक्टर। उसको गियर अप किया गया, सही किया गया, एंड मार्जी की पेस के साथ, मार्जी की स्पीड के साथ उसको मैच किया गया। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन, थर्ड। व्हाट डिड ही डू? ही मतलब कौन? काउंटी इंस्पेक्टर क्या किया? So let's see. He visited Margie's home. He took away mechanical teacher and set its geography level equal to Margie's mental level. तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? मैकेनिकल टीचर को अपने साथ लेके गए और मार्जी के मेंटल लेवल के साथ ज्योग्राफी का जो लेवल था उसको इक्वलाइज किया गया, सो दैट कि मार्जी को पढ़ने में तकलीफ ना हो, उसको समझने में तकलीफ ना हो। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। Why was Margie doing badly in geography? What did county inspector do to help her? So यहाँ पे क्या पूछा? मार्जी अचानक से ज्योग्राफी में इतना बुरा क्यों कर रही थी? उसके टेस्ट आफ्टर टेस्ट हो रहे थे एंड शी कुडंट डू वेल, वो अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तो दे वर आस्किंग कि क्यों ऐसा हो रहा था, एंड काउंटी इंस्पेक्टर ने आके क्या हेल्प किया मार्जी का? ओके, सो लेट्स सी। Margie had been doing badly because the geography sector had been too quick for her to follow. तो ज्योग्राफी सेक्टर बहुत ज्यादा क्विक हो गया था, फास्ट चल रहा था, एंड मार्जी जो उसकी स्पीड के साथ वो कोप अप नहीं कर पा रही थी, फॉलो नहीं कर पा रही थी। मार्जीज मेंटल लेवल वाज नॉट इन ए ट्यून विद इट। मतलब मार्जी का जो दिमागी जो स्पीड होता है, हर बच्चे के दिमागी, सिर्फ बच्चे का नहीं, हर इंसान का समझने की शक्ति एक अलग लेवल की होती है, तो वो लेवल से वो बहुत ज्यादा जा रहा था, इसलिए मार्जी को समझ नहीं आ रहा था। एंड काउंटी इंस्पेक्टर ने कैसे हेल्प किया? द काउंटी इंस्पेक्टर केम एंड चेक्ड द मैकेनिकल टीचर। उसने मैकेनिकल टीचर को अच्छे से चेक किया, प्रॉब्लम क्या है उसको समझने की कोशिश की। देन ही रीसेट द मैकेनिकल टीचर्स मेंटल लेवल इक्वल टू मार्जी। यानी मैकेनिकल टीचर का जो मार्जी का मेंटल लेवल था उसके साथ मैकेनिकल टीचर के लेवल को कंबाइन किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर? आप चैप्टर में देखोगे कि मार्जी के टीचर जब 1 घंटे में ठीक कर दिए काउंटी इंस्पेक्टर ने, देन व्हाट मार्जी फाउंड? मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज she was recalling that incident when Tommy's teacher had some fault in it, है ना? तो here they are asking that what happened to Tommy's teacher? टॉमी के टीचर को क्या हुआ था? So the history sector of Tommy's mechanical teacher had blanked out completely. क्या हो गया था उसके टीचर को? टॉमी के मैकेनिकल टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट टोटली, यानी जो भी उसमें टाइप्ड मैटर था वो सारा का सारा ब्लैंक हो गया था, पूरे वॉश्ड अप हो गया था। सो दे हैड टुक इट अवे फॉर नियरली अ मंथ, जिसकी वजह से क्या हो गया? उसके टीचर को 1 महीने के लिए लेके गए, फॉर एंटायर 1 मंथ, एंड टॉमी रिलैक्स्ड फॉर दैट पीरियड विदाउट एनी वरी। नेचुरली टीचर अगर स्कूल नहीं रहेगा, टीचर नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो टॉमी उस समय रिलैक्स कर रहा था, यानी कि उसे हिस्ट्री को लेके कोई भी टेंशन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6।
Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? इसको हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, नहीं सेम क्वेश्चन को, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, व्हाई और व्हाई नॉट? सो मार्जी के क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि मार्जी का रेगुलर स्कूल होता था, रेगुलर टाइम यानी फिक्स टाइम में होता है। बेटा आप लोग का भी देख सकते हैं, आपका भी फिक्स टाइम होता है, मे बी आप 7:15 7:30 और माइट बी 8:30 8:50, जो भी आपका स्कूल का टाइमिंग है अकॉर्डिंगली रोज उसी टाइम पे होता है। ऐसा नहीं होता कि कभी 8 बजे हुआ, कभी 9 बजे हुआ, कभी 10 बजे, ऐसा इरेगुलर नहीं होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि मार्जी का ऐसा था क्या, रेगुलर आवर्स था, रेगुलर? क्योंकि आप ऐसा क्वेश्चन क्यों आया, बिकॉज यू माइट बी थिंकिंग, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बिकॉज टेलीबुक तो हमारी मर्जी है, एवरीथिंग इज विद इन आवर हैंड, तो हम जब फ्री होंगे उसके हिसाब से हम ऑन करेंगे, टाइम फिक्स करने की क्या जरूरत है ना? तो यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन आया, क्या मार्जी का भी रेगुलर डेज में स्कूल होता था और रेगुलर टाइम पे होता था, जैसे आप लोग रेगुलर टाइम पे स्कूल में जाते हो? यस, yes, Margie had regular days and hours for school because, according to Margie's mother, studying in regular time may help in better learning. अब वो क्यों, यहाँ पे पूछा ना why और why not, if so why, उसके रेगुलर टाइम पे क्यों होता था? मैंने अभी बोला था क्योंकि इट वॉज टेलीबुक, तो हमारी मर्जी, हम कभी भी ऑन कर ले। तो लेकिन ऐसा क्यों होता था कि रेगुलर टाइम पे? तो रीजन था बिकॉज मार्जीज मदर बिलीव, उनकी माँ ये सोचती थी कि कोई भी चीज अगर हम रेगुलर टाइम में करें तो वो उसका बेटर आउटकम होता है, उसकी अच्छी आउटकम आती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इन रेगुलर टाइम में हेल्प इन बेटर लर्निंग, सही तरीके से पढ़ाई होगा, इसीलिए वो रेगुलर टाइम पे उसके स्कूल्स होते थे। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने इन द चैप्टर, टॉमी हैव डिस्क्राइब द ओल्ड स्कूल। सो क्वेश्चन वाज कि उसने क्या डिस्क्राइब किया था ओल्ड स्कूल के बारे में? He describes that they had a special building, all kids went there. So, wait. So he's described that they had a special building, all kids went there and they learned the same thing. तो एक स्पेशल टाइप का अलग तरह का बिल्डिंग होता था। वाई दे आर सेइंग स्पेशल बिल्डिंग? बिकॉज इन 2157 उस समय ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं होती थी। स्टूडेंट्स यूज टू लर्न एवरीथिंग इन देयर रूम इटसेल्फ, दे आर नॉट अलाउड टू गो बिकॉज बुक्स आर देयर इनसाइड द टेलीबुक। तो इसलिए दे आर सेइंग कि दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, ऑल किड्स वेंट देयर, सारे बच्चे वहीं जाते थे, दे लर्नड द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे। दे हेल्प्ड ईच अदर इन दैट एंड ड्यूरिंग द लर्निंग वो एक दूसरे को मदद भी करते थे। अगर किसको समझ नहीं आया तो जिसको समझ में आ गया वो दूसरे की मदद करता था। दे लाव्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, दे सैट टुगेदर इन द स्कूल रूम। स्कूल यार्ड यानी जो बड़ा सा खुला एरिया होता है उसको बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, वो खुशी से हंसते थे, चिल्लाते थे, यानी बच्चे जैसा करते हैं खेलते वक्त, है ना? एंड दे सैट टुगेदर इन द स्कूल रूम, यानी क्लास की बात करें, क्लास में भी वो एक साथ बैठते थे। दस दे हैड अ ग्रेट फन टुगेदर, और क्यों सारे बच्चे एक साथ करते थे तो नेचुरली बहुत मजा आता था, तो इसलिए बोल रहे कि इट वॉज अ लाइक फन फॉर देम। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? उसने क्या बताया था, टॉमी ने क्या बोला कि पुराने समय कैसे टीचर्स होते थे? ही डिस्क्राइब्स the old teachers by saying that didn't live in house, they had a special building, they went there, they gave the boys and girls homework, they asked them questions, they were human beings. So यहाँ पे वो बोल ही रहे हैं कि ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, पहले ओल्ड बिल्डिंग के बारे में पूछा, ओल्ड स्कूल के बारे में पूछा, और अभी बोल रहे कि टीचर्स कैसे होते थे। तो हाउ ही डिस्क्राइब्ड द ओल्ड टीचर्स बाय सेइंग दैट दे डिडंट लिव इन द हाउस, वो उनके घर पे, बच्चों के घर पे नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनका अलग एक बिल्डिंग होता था, दे वेंट देयर, और सब समय जब रेगुलर टाइम स्कूल की टाइम होती थी, टीचर भी बच्चे भी सब एक साथ उस बिल्डिंग में पहुंचते थे। एंड दे गेव, दे यानी कौन, टीचर्स, गेव द बॉयज एंड गर्ल्स होमवर्क, उन्हें वो होमवर्क देते थे। दे आस्क्ड देम क्वेश्चन, टीचर्स जो है उनको क्वेश्चंस पूछते थे, एंड दे वर ह्यूमन बींग्स, दे वर नॉट अ कंप्यूटर टीचर्स, यानी कंप्यूटर वो टेलीबुक्स नहीं थे, वो ह्यूमन बींग थे, इंसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वाइट लेंदी,
as compared to previous two questions, because they are asking you to write in 2 or 3 paragraphs and near about 100 to 150 words. So let's see. Again, it would be not very difficult. I have, although it is of 100 to 150 words, but I tried answer to be very simple so that you could understand and learn it very easily. So what are the main features of mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट आर द मेन फीचर्स, उसके फीचर्स क्या थे, किस चीज के? मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम, उनका जो स्कूल रूम था और मैकेनिकल टीचर का, किसके? मार्जी एंड टॉमी के। स्टोरी में जैसे डिस्क्राइब किया है वैसे आपको बताना है। ओके, सो लेट्स सी द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम आर दे हैड अ कंप्यूटर स्क्रीन्स। तो कैसा था उनका? मेन फीचर था कि स्कूल, उनका जो स्कूल रूम और टीचर जो था, दे आर कंप्यूटर विद स्क्रीन्स। कोई ह्यूमन टीचर नहीं थे, वो जस्ट अ सिंपल कंप्यूटर था, उसमें स्क्रीन होता था। दे आर फिक्स्ड इन देयर क्लासरूम, और आप यहाँ वहां नहीं लेके आ सकते, क्लासरूम में फिक्स्ड होता है, उनका एक फिक्स जगह होता है। व्हेन देयर इज अ टाइम टू स्टडी, बोथ टॉमी एंड मार्जी सिट बिफोर देम, और जब टाइम होता था बच्चे जाते थे किसके पास? कंप्यूटर स्क्रीन के पास, एंड वो पढ़ाई करते थे। देन दे स्विच ऑन देम, पढ़ाई करने के लिए उसको स्विच ऑन करना पड़ता था। देन देयर लेसन अपीयर ऑन द स्क्रीन, और जैसे ही वो स्विच ऑन करते थे उनका लेसन, टेलीबुक जो था, वो कंप्यूटर स्क्रीन में दिखता था। दीज मैकेनिकल टीचर्स हैव स्लॉट्स एट अप्रोप्रिएट प्लेस, और उनके एक स्लॉट होते थे, यानी गड्ढा जैसा होता था फिक्स जगह पे। क्या करते थे उस गड्ढे पे, हम बताते हैं। दे फ्लैश ऑन देयर स्क्रीन, मार्जी और टॉमी इंसर्ट हर और हिज होमवर्क इनटू द स्लॉट, और जैसे ही स्लॉट ओपन होता था उनका फ्लैश, स्क्रीन में फ्लैश होता था क्या? दैट दे वर आस्क्ड टू गिव देयर होमवर्क, उनको जो भी वर्क मिला है वो स्लॉट के अंदर डालना पड़ता था। इट इज इवेल्युएटेड बाय देम थ्रू पंच कोड सिस्टम, और हम जैसे सिंपली लिखते हैं अल्फाबेट्स, वैसे नहीं, उनका पंच कोड सिस्टम होता था। पंच कोड यानी किसी चीज को छेद करके, मैंने सारे चीज जो है चैप्टर को जब मैंने डिस्क्राइब किया है, हर एक लाइन को जब एक्सप्लेन किया, मैंने ईच एंड एवरीथिंग उसमें बताया। तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स करने के पहले एक बार वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लो, तो ये बहुत ज्यादा आपको सिंपल होगा समझने के लिए। तो इट इज इवेल्युएटेड, इवेल्युएटेड मतलब जज्ड, जैसे आपके टीचर आपको जज करते हैं ना कि आप 9th से 10th में जाओगे कि नहीं, तो कैसे जज करेंगे? बस आपको देख के तो कोई नहीं जज कर सकता ना, तो आपके कैसे, आपके राइटिंग स्किल को देख के क्या आता है, आपका स्किल क्या है, आप आर यू एबल टू आंसर, आर यू एबल टू फ्रेम answers or not, sentences or not. On that basis, she used to evaluate you. So it is evaluated by them through punch code system. Punch code system से ही evaluate करता था computer teacher. Then it is given back to them. और फिर वो slot के through ही वापस आता था, within a second check होके वापस भी आ जाता था। By this they are assessed of their progress in their studies. और इस तरीके से उनकी स्टडी कहाँ तक पहुंची, इससे वो assess किया जाता था, अनुमान लगाया जाता था। These mechanical teachers have subjects like geography, mathematics and history. और ये मैकेनिकल टीचर में टीचर क्या क्या पढ़ाते थे? ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री। द सब्जेक्ट्स आर मेड इक्वल टू द मेंटल लेवल ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड। यहाँ पे क्या एक अलग चीज बताया जा रहा है, वो है कि हर एक बच्चे की जो सीखने की क्षमता है उसके हिसाब से उसको सेट किया जाता था, सो दैट कि बच्चा अच्छे से समझ सके। अभी क्या होता है कि एज वाइज क्लासेस बच्चों को आगे भेजा जाता है, बट 2157 में डिफरेंट होगा। यानी अगर बच्चा अगर 10 साल का है, बट इफ अकॉर्डिंग टू 10 वो अगर वैसे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सोचिए वो फिर 5 साल के बच्चे जैसा रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसे 5 साल के बच्चे का ही कोर्स पढ़ाया जाएगा, ना कि वो उसे 10 साल का। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, मेड इक्वल टू द मेंटल लेवल ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड। मार्जी इज डूइंग बैड इन ज्योग्राफी बिकॉज इट इज टू फास्ट। और मार्जी जो है पहले तो ठीक कर रही थी, बट अचानक से वो अच्छा करना बंद कर दी थी, किसमें? ज्योग्राफी में। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी का जो सेट था वो काफी फास्ट हो गया था। द काउंटी इंस्पेक्टर सेट इट राइट इक्वल टू मार्जीज मेंटल लेवल। तो काउंटी इंस्पेक्टर आए और मार्जी के मेंटल लेवल के हिसाब से उसको सेट किया। ओके, सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल? व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? तो मार्जी स्कूल को इतना हेट क्यों करती थी, एंड उसे क्या लगता था? वो कंटिन्यू सोच ही रही थी कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल कितना मजेदार होगा, कितना उस समय के बच्चों को कितना मजा आता होगा।
Why did she think so? है ना? तो let's see the answer. Margie hated school because her school was the mechanical teacher. मार्जी इतना हेट क्यों करती थी अपने स्कूल को? बिकॉज उसके जो टीचर थे वो ह्यूमन टीचर नहीं थे, इट वॉज अ मैकेनिकल टीचर. इट हैड बीन फिक्स्ड इन हर स्कूल रूम, और वो एक प्रॉपर एक जगह पे उसके रूम पे फिक्स किया जाता था. शी हैड टू सिट अलोन एट द फिक्स टाइम एंड डू सम्स और लर्न थिंग्स. तो क्या बोले, उसे अकेले वहां बैठना पड़ता था. एक फिक्स टाइम होता था जहां उसे बैठ के सम्स करने पड़ते थे और चीजों को सीखना पड़ता था. हर हेट्रेड वॉज मोर ड्यू टू जियोग्राफी सेक्टर. बट कुछ दिनों से उसको बहुत हेट्रेड फील हो रहा था, बिल्कुल नफरत सा फील हो रहा था. क्यों? बिकॉज रीजन था ज्योग्राफी सेक्टर. इट हैड गॉन टू क्विक. ज्योग्राफी सेक्टर से क्यों हेट कर रही थी? बिकॉज वो बहुत फास्ट हो गया था. सेकेंडली, मार्जीज मेंटल लेवल वॉज नॉट अप टू दैट मार्क. और जितना फास्ट हो गया था, मार्जी का मेंटल लेवल यानी उसको समझने की शक्ति उतनी नहीं हो रही थी, यानी उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था. दैट्स व्हाई शी हेटेड ज्योग्राफी. So she had been facing problem with geography. The county teacher set it right as per her mental level. काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया एंड उन्होंने ठीक किया और मार्जी के मेंटल लेवल के साथ उसको मैच किया गया. बट बिहाइंड हर हेट्रेड वॉज अ वैलिड रीजन. तो अब हम रीजनिंग कर रहे कि हाँ बिल्कुल वो जो हेट्रेड कर रही थी बिल्कुल सही था. वाई? इट वॉज दैट शी हैड नो कंपनी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ हर एज. वो क्यों इतना हेट कर रही थी? बिकॉज सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना पढ़ना बस इतना ही था. ना कोई खेलना, ना कोई बच्चों के साथ दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप होना. कोई बच्चे नहीं थे, वो अकेले पढ़ाई करती थी तो उसे बहुत ही बोर लगता था. एवरी बॉय एंड गर्ल इन हर नेबरहुड स्टडीड लाइक दैट. और कोई किसी के पास समय भी नहीं होता था क्योंकि बच्चे जो है स्क्रीन के सामने पढ़ाई कर रहे हैं. तो और सिर्फ ये मार्जी एंड टॉमी के साथ नहीं था, उस समय के जितने बच्चे थे सबको ऐसा ही लर्न करना पड़ता था. इन देयर ओन स्टडी रूम, अपने ही स्टडी रूम में उन्हें पढ़ना पड़ता था. देयर वर नो स्कूल्स एज ऑफ ओल्डन स्कूल which she learned about from Tommy. It increased her hatred for a mechanical teacher more and more. एंड क्या हो रहा था कि उस समय वो और भी पुराने स्कूल के बारे में इसलिए सोच रही थी बिकॉज उसे लग रहा था कि अरे अभी तो ऐसा कोई भी ओल्डन स्कूल जैसे नहीं है जहां पे सारे बच्चे आएंगे, टीचर्स आएंगे, सब मस्ती करेंगे और समय के साथ साथ वो घरों पे चले जाएंगे. एंड और ये सब सोच सोच के उसका जो हेट्रेट था वो ज्यादा ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था मैकेनिकल टीचर को लेके. चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है. डू यू एग्री Do you agree with Margie that schools today are more fun than the school in the story? Give reason for your answer. तो क्या बोलते हैं आप? मार्जी से एग्री करते हैं कि आज का जो स्कूल है वो ज्यादा मजेदार है, हम फन करते हैं एज कंपेयर टू द स्टोरी, एज कंपेयर टू द टीचर दैट मार्जी डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी? Yes, sure. Even I think you all will agree with me. Yes, it is true that schools today are more fun than the school in the story. आजकल के स्कूल में ज्यादा फन है एज कंपेयर टू द स्टोरी. स्टोरी में जो स्कूल के बारे में बताया था. क्यों? दिस स्कूल इज नथिंग बट अ कंप्यूटर विद अ स्क्रीन एंड अ स्लॉट. तो क्या बोल रहे हैं? क्योंकि ये स्कूल जो है स्कूल थोड़ी है, ये कंप्यूटर है जिसमें एक स्लॉट में हमें अपना काम डालना पड़ता है और कुछ सीखने के लिए उसके स्क्रीन को हमें रीड करना पड़ता है. इट्स इंस्ट्रक्टर फ्लैश ऑन इट्स स्क्रीन. और जो भी आपको पढ़ना है इंस्ट्रक्टर फ्लैश करता है यानी दिखाता है मॉनिटर पे. इट आस्क्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. और कंटिन्यू कंप्यूटर में से आवाज आती है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. इट ऑल्सो टेल्स हर हाउ टू पुट द होमवर्क. ये कंप्यूटर टीचर बोलते हैं कि होमवर्क को कैसे स्लॉट में डाले. देर इज नो ह्यूमन इंटरेक्शन. ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं है. ह्यूमन इंटरेक्शन यानी जैसे क्लास में भी आप अगर बोलते हो कि मैम होमवर्क नहीं हुआ, मैम आपसे रीजन पूछेगी बेटा कि होमवर्क क्यों नहीं हुआ, तो आप बोलोगे मैम जो भी आपका प्रॉब्लम, मैम मुझे समझ में नहीं आया, या जो भी आप है यू कैन शेयर विद इट, है ना. और मैम अकॉर्डिंगली फिर आपके जो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैम फिर से आपको समझा देती हैं, या आपने अपना कोई वैलिड रीजन बोला, अपने प्रॉब्लम शेयर किया तो मैम समझती हैं. बट यहाँ पे जो है इट इज कंप्यूटर टीचर. दे डोंट हैव एनी इमोशन. उनका इमोशन नहीं होता है. दे जस्ट नीड द रिजल्ट. उनको खाली रिजल्ट चाहिए होता है. उन्होंने बोला स्लॉट ऑन किया और बोला अपने आंसर्स उसमें डालो तो यू हैव टू डू इट. नो एनी अदर ऑप्शन. बट इन द स्कूल्स टुडे kids of the same age go to school in neighborhood. They go to them laughing and shouting. तो क्या बोल रहे ये अब
पुराने का समय, ओल्ड स्कूल के बारे में बताया जा रहा है, जहाँ पे नेबर यानी आसपास के सारे बच्चे जाते हैं स्कूल में, हंसते हुए, चिल्लाते हुए, खुश होके, यानी हंसते हुए चिल्लाते हुए क्यों बोला है, that they were enjoying, उनके लिए वो बर्डन नहीं लग रहा था। दे प्ले टूगेदर, दे एंजॉय द स्टे एट स्कूल, वो अपने स्कूल में रहने को भी एंजॉय करते हैं, मजा आता है। दे गो होम टूगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल खत्म हो जाती है, देखो आपके जब लास्ट बेल टन 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 बजती है, आप कितनी खुश होते हो, है ना, घर जाने को मिलता है। इसलिए थोड़ी कि आप बहुत, क्योंकि स्कूल आपके लिए बर्डन लग रहा था, यानी आप हर एक पल को एंजॉय करते हो, क्लास होता है उसको भी आप एंजॉय करते हो, घर जाना उसको आप एंजॉय करते हो, है ना। तो दे लर्न द सेम थिंग्स, और सारे बच्चे सेम एज के सब एक ही चीज पढ़ते हैं। दस दे कैन हेल्प ईच अदर ऑन होमवर्क, और क्योंकि सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते हैं, तो नेचुरली एक दूसरे को हम हेल्प कर सकते हैं। जैसे जिसको समझ में आया वो किसको हेल्प कर सकते हैं, जिसको समझ में नहीं आया, है ना, तो एक दूसरे को हम हेल्प कर सकते हैं। दे कैन टॉक अबाउट इट, वो आपस में बात भी करते हैं, जैसे आप भी बात करते हो, है ना, टेस्ट वगैरह हो गया तो आप बात करते हो, बाप रे टेस्ट कितना डिफिकल्ट आया था, कोई बोल सकता है नहीं नहीं टेस्ट तो बहुत इजी था, मैंने तो पूरा लिख दिया था। ऐसे आप लोग आपस में बात करते हो एक ही चीज के टॉपिक के बारे में, है ना। बट देखो यहाँ पे माँ जी ऐसा कर नहीं सकती थी, बिकॉज सारे बच्चे के अलग अलग मेंटल हेल्थ होता था, मेंटल लेवल होता था, उसके हिसाब से उनके टीचर अलग अलग चीज पढ़ाती थी, तो दे कैन नॉट शेयर एनीथिंग विद ईच अदर। Thus, they do not feel lonely and bored. तो आज के बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इतने सारी चीजें होती थी, सारे बच्चे साथ होते थे, दे डोंट फील बोर्ड, उनको बोर नहीं लगता है। दे प्ले टूगेदर एंड एंजॉय द फन ऑफ बीइंग टूगेदर, और वो उस समय को, उस स्टेट को एंजॉय करते हैं जब सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एंजॉय करते हैं और फन करते हैं। और आप भी ऐसे करते होगे, है ना, छुट्टी के बाद देखते होगे आप, बाहर कोई अगर शॉप है, आप वहां बैठ के थोड़ी देर चिल करते हैं और फिर घर जाते हैं, है ना। तो ये आप जो है, ये ऐसा क्यों है, यू आर एंजॉइंग दैट मोमेंट विच वॉज मिसिंग इन मार्जी। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन which I have discussed here. Hope you have understood. You have noted down all the answers. As I've tried to give the answers in a very simple words, simple sentence. Hope you have understood everything. So see you in the next video. If you have any doubt, still if you have any doubt, you can comment in the comment section box. I will definitely answer your queries. Till then, see you in the next video. Bye bye to all of you.